आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वत अलवस्का। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी लाइफ एक नौजवान की ज़िंदगी का ऐसा सुनहरा दौर जब वो ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में कदम रखता है, और इन्हीं ख्वाबों और हकीकत के दरमियान कई सारी स्ट्रगल्स, कई सारी चैलेंज रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी लाइफ उन्हें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी फराहम करती है। तो यही एक्सपीरियंसेस जानने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो नाज़रीन, आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं स्टूडेंट्स से कि उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ उनके लिए क्या है। एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम। हम दूरदर्शन से हैं और हमारी टीम आज यहाँ पे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने आई है, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस जानने के लिए। आप हमसे बात करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप किस डिपार्टमेंट से हैं? My name is Maria. I'm from the Department of English. I'm from Sem 1, first year. I'm doing my master's here. जी मारिया, चूँकि हम इस यूनिवर्सिटी में जब आए तो कई सारे ग्रुप्स भी हम लोगों को दिखे, हम रोम कर रहे थे, तो हमने सोचा कि पहले हम आपसे ही बात करें, और लकीली आप भी हमसे बात करना चाह रहे हैं। तो जानना चाहेंगे कि जब हम इस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो एक स्टूडेंट के जहन में कई सारी चीज़ें होती है जब वो एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, कई सारी एक्सपेक्टेशंस भी होती है। उन एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस यूनिवर्सिटी के साथ किस तरीके का रहा? So basically, this is a phase of transition. When one transitions from undergrad to postgrad, this is a new space of inhabitation. It is essentially different from any other spaces that we have, occupied before. So, talking about my own experience, I'd say that one thing that I've experienced here essentially is the aspect of assimilation of knowledge, assimilation of growth, assimilation of movement forward. And I've experienced it with friends, with peers, with professors. I wasn't expecting immediately to find camaraderie and companionship in friendships and, a sense of direction from the professors. But I did find it. And I think to be able to access knowledge that your peers and your professors possess is very important in a university, and I think this university so far has provided, and that has been my experience so far. As a student of literature, it is pertinent upon me to, my main job is to read, and to quote Francis Bacon, to read is not just to contradict or confute, it is not just to believe and take for granted, it is not to mere talk and discourse, but it is to weigh and consider. As young adults, there are apprehensions one faces, right? The apprehension of employment, the apprehensions of the practicalities of life. But there is a friend to sit with at the table and a professor to go to in the cabin. And that is what makes the university life important and vibrant. बहुत बहुत शुक्रिया मारिया आपका हमारे साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए। चूँकि और भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और किस डिपार्टमेंट से आप हैं? My name is Gausia Tasleem. I am from the Department of English. I am pursuing my Masters in English Literature. अच्छा, किस सेमेस्टर से है आप? I am from the first semester. चलिए, और एक न्यू कमर हमारे साथ यहाँ पे है, आपकी भी कई सारी एक्सपेक्टेशंस होगी। तो आप बताइए अपने अर्लियर लाइफ के बारे में, लाइक आपकी जो कॉलेज लाइफ है। चूँकि मारिया ने भी एक ट्रांजिशन की बात की, उस ट्रांजिशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। वो जो एक कॉलेज लाइफ से आप यूनिवर्सिटी की लाइफ में आते हैं, तो कैसा लग रहा है, कैसा फील होता है आपको, क्या एक्सपीरियंसेस है? So my experiences are quite different. So basically it's a transition. Like when you come to university, it's a transition of life. It's a transition of college life
to the university life. So it's completely different. And I am here in the English department. I am a student actually. I have done my bachelor's in science and I have switched to English literature. Yeah. So it's completely new for me. It's completely different for me. So talking about university life, it is completely, I believe, blend of both opportunities as well as difficulties, but I have to I believe that one should always be an optimistic. So I believe in the opportunity part, and here when I joined university I came with so many expectations that I'll be enjoying my life, I'll get to know the people, my professors, it would be entirely different. And basically I came up here with the thought that it's going to be very smooth life, but when I came here I actually got to know that here I am standing in the university and here I am going to know about myself. Here when I came to university I got to know who I am, who Gausia is, what I have to be. And there is another philosopher, Socrates, he talks about knowing the self. Here I came to the university, I got to know who I am, what I have to do, what is it going to be in the future, where do I stand, how tough it is going to be, what is the competition, what is the level of competition. So it's a blend of both. I can say it's a blend of both. So yeah, and talking about University of Kashmir, it has always been a dream university for me, not just because of the beautiful campus, not just because of the beautiful campus, yeah, but the faculty. And talking about my department, it is a blessing, entirely a blessing. English Literature Department of the Kashmir University is a blessing. बहुत बहुत शुक्रिया गौसिया हमसे बात करने के लिए, और आपने बिल्कुल खूब तरीके से ये खाका हमारे सामने खींचा. और वही एक चीज़ होती है कि जब आप यूनिवर्सिटी आते हैं तो जैसे आपने ट्रांजिशन की बात की, वो एक एकेडमिक लाइफ का ही एक ट्रांजिशन नहीं होता है, एक सेल्फ डिस्कवरी का भी ट्रांजिशन होता है, जहाँ पे आप खुद को जानने लग जाते हैं, अपनी लिमिटेशंस को जानने लग जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानने लग जाते हैं. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो. हमारे साथ और एक स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करना चाहेंगे हम. तो ये जो एक लाइफ है जहाँ पे आप एकेडमिक लाइफ भी देख रहे हैं, आप साथ में खुद को भी पहचान रहे हैं, इसमें ये अपने आप में ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो इस चैलेंज को आप किस तरीके से टैकल करती हैं, या किस तरीके से आप इन दोनों चीज़ों में वो जो एक ब्रिज है वो क्रिएट करती है? और इस सवाल का जवाब देने से पहले आप हमें अपना नाम और डिपार्टमेंट भी बता दीजिए. I'm Noha Nabila from the Department of English Literature. University life has been an initiation into the life of the mind. As Professor Ifat once said in our class while speaking about humanities, she said that humanities is the pursuit of an idea. And I think by extension, university realizes that pursuit. I think university embodies that critical thought that needs to be pursued so as to bring it into immediate effect. And bridging the gap between academic ambition and personal composure is a challenge for many students. But I think the university offers so much comfort in that respect. It offers so much accommodation and such space for every student to be here and to be themselves, and then insist upon their individuality and also realize that they are the part of the broader dynamic of the entire class, which helps bridge not only the external conflicts but also the internal conflicts that every student goes through. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बात करने के लिए. नाजरीन, इस सफ़र को जारी रखते हुए आइए कुछ और स्टूडेंट से बात करेंगे यहाँ. तो चलिए इस सफ़र को जारी रखते हैं. सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप किस डिपार्टमेंट से हैं? जी, मेरा नाम रदीना है. आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. अच्छा रदीना, कुछ स्टूडेंट से हमने यहाँ पे बात की जिन्होंने एकेडमिक लाइफ के बारे में बताया, सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बात की. आपसे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना चाहेंगे, वो ये कि एकेडमिक लाइफ के अपार्ट भी एक
امپورٹنٹ چیلنج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ ٹین ایج سے جب ایڈلٹہڈ میں ایک ٹرانزیشن لیتے ہیں, اور یونیورسٹی لائف میں وہی ایک چیز بھی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ایموشنس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہو, اور ایڈلٹہڈ کے ساتھ ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی ہم پہ عائد ہوتی ہے. تو کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو بیلنس کرتے ہو, یہاں کے کس طریقے کا ایکسپیرینس آپ کو رہا؟ Honestly, that is just a very profound question and a very deeply intertwined with us, because we don't really think about it much. Jab hum college mein hote hain, we're in our late teenagers and we don't really care about things much. We're more into like it's life, ho jayega, we like things happen. But the more I especially I got into university, I realized ki I am growing up, I am an adult now. It was a very sudden transition, to be very honest, and it came with so much responsibilities that I had not thought about it. It like hit me out of nowhere ki oh my god, I am an adult, and now I cannot take life as unseriously as I would have before. Now I have tension about obviously I care about my parents. I think I see them growing old, I see the things they used to do which now ab wo thak jate hain karte hue. But then I feel like that's my personal belief that there is a silver lining to all of this, and I will find a silver lining to all of this, because the first thing in any challenge is accepting that it is a challenge, acknowledgement of the challenge, and we accept challenges, we acknowledge that yes, life is moving forward, and then we make a plan of it, and then we make multiple plans of it. So that is a silver lining. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, چونکہ یہاں پر ایک اہم چیز انہوں نے چھیڑی, وہ یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا جو ہے ایک الگ پیس سے جا رہی ہے, آپ کو بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں دماغ میں, بہت ساری پیرنٹل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو کئی سارے چیلنج ہوتے ہیں, لیکن پھر وہی چیلنج کو آپ کس طریقے سے ٹیکل کریں. لیکن ساتھ میں یونیورسٹی لائف آپ کو اپرچونیٹیز بھی فراہم کرتی ہے. ان اپرچونیٹیز پہ بھی ہم اس سیگمنٹ میں بات کرنا چاہیں گے. یہاں پہ کچھ ہمارے ساتھ اور اسٹوڈنٹس بھی موجود ہے جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے اور آپ کس ڈپارٹمنٹ سے؟ میرا نام سیدہ حرمت ہے اور میں انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہوں. اچھا حرمت, آپ ہمیں بتائیے, چونکہ ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا وہ ٹرانزیشن, وہ اکیڈمک لائف, لیکن اب ہم جاننا چاہیں گے جب ہم چیلنج کے بغیر ایک پہلو رہتا ہے ہماری یونیورسٹی لائف کا, وہ ہوتا ہے اپرچونیٹیز. آپ کو نئی اپرچونیٹیز ملتی ہے, کس طریقے کی اپرچونیٹیز یہ ہوتی ہے؟ جو ہمارے کالج اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارا یہ پروگرام دیکھیں گے, ان کے لیے آپ ہمیں بتائیے کہ یونیورسٹی لائف آپ کو کس طریقے کی اپرچونیٹیز فراہم کرتی ہے, آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہاں پہ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہمیں پرووائڈ ہوتی ہے, لائک جیسے فرام دا فرسٹ ویری ڈے جب میں یہاں آئی تھی تو یہاں پہ بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز مجھے دیکھنے کو ملی, جیسے اسکالرشپ پروگرامز یہاں بہت سارے ہیں. جو ویکر سیکشنز ہے بچوں کے, وہ یہاں پہ ایزیلی ایڈجسٹ کر پاتے ہیں, پڑھ پاتے ہیں. کیوں؟ یونیورسٹی ڈفرینٹ کرائٹیریاز پرووائڈ کرتی ہے اسکالرشپ کے پارٹ میں, جیسے انٹرنشپ یہاں کروائی جاتی ہے, ڈسٹینس ایجوکیشن. دوز جو پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں وہ ریگولرلی نہیں آ سکتے, ریگولر موڈ پہ نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آن لائن ایجوکیشن بھی بہت اچھا ہے. کیوں آن لائن ایجوکیشن اچھا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے ان کے پیرنٹس بیمار ہوتے ہیں یا ریٹائر ہو جاتے ہیں, وہ آگے جا کر نہیں پڑھ پاتے ہیں, ویسے پرسیو نہیں کر پاتے. اس میں ان نے بہت فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ آگے جا کر جو یہاں پہ بہت سارے سوشل ورکس کروائے جاتے ہیں, جیسے NSS ہے, وہاں پہ ہمیں سوشلی اپ گریڈ کیا جاتا ہے کہ ہم سوشل لیول پہ اپنے آپ کو کیسے اپ گریڈ کریں. اور بہت سارے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہیں. ایز میں فرسٹ سیمسٹر سے ہوں, ابھی تو اسٹارٹنگ میں نے دیکھا, آگے جا کر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور یہاں پہ ہے کہ آپ ریگولر کے ساتھ ساتھ ایک اور کورس بھی کر سکتے ہو جو ڈسٹینس ہے, وہ نیا انہوں نے نکالا ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو یہ اویل کر سکتے ہیں. تھینک یو. سب سے پہلے اپنا نام بتائیے اور آپ کس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا نام سعدیہ شفیق ہے, میں انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہوں. اچھا سعدیہ, آپ سے جاننا چاہیں گے, چونکہ جب آپ یونیورسٹی آئے, آپ بھی ایک نیو کمر ہے, تو اس یونیورسٹی میں آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں. خالی آپ سہمت نہیں رہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے. فار ایگزامپل آپ انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو انگلش ڈپارٹمنٹ کے پروفیسرس, آپ کے جو اور بیچ میٹس ہیں, آپ کے سینئر جونیئر, اس کے علاوہ آپ دوسری ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں. آپ کی جو ایک دنیا ہے, جو سوشل لائف ہے, وہ وسیع ہو جاتی ہے. اس پہ ذرا آپ ہمیں آڈینس کو جو ہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے. جی, دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی کیم ان ٹو دی یونیورسٹی, جو ہمارا پہلا ایکسپیرینس رہا تھا دیٹ آف اینڈ دس انٹر ڈپارٹمنٹ کانورسیشن یا انٹر ڈپارٹمنٹ ایکسچینج جو تھا, وہ دیٹ واز ود ان دا کیفیٹیریا, وچ آئی تھنک از
a very beautiful ground to speak of new things. तो वहाँ पे you get to know about people from different sections and backgrounds as well as from different subjects. तो इंसान को लगता है कि maybe my department is better than other departments, but when you get to know them, you get to understand them कि वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, and the way they carry themselves, they are not just limited to their own departments and fields. वो मुख्तलिफ departments से भी इंटरेक्ट करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं और वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. यहाँ पे सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डिपार्टमेंट अदर देन ऑब्वियसली आवर इंग्लिश डिपार्टमेंट. एंड देयर इज़ दिस हिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट. सीनियर मोस्ट फैकल्टीज़ जो है हमारे यहाँ के मुफ्ती सर है या फिर हमारे जावेद सर हैं, वो दोनों जो हैं वो हमारे they are senior most faculties of the whole university and they have carried the department so intertwined तरीके से that इंसान को लगता नहीं है that we are lagging behind either in one sphere or the different sphere. and our जो हमारी जो understanding रहती है world की, that is not limited to just our own subject. बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि जब आपकी सोशल लाइफ वसी हो जाती है, आप खुद को भी जानने लग जाते हैं, सोसाइटी आपको एज एक आईना प्रोवाइड करती है जिससे आप खुद को जानने लग जाते हैं. और एक पहलू जो है हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ का वो ये होता है कि कई सारे चैलेंज होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, टैकल करने पड़ते हैं. एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स की तरफ रुख करेंगे. आप प्लीज़ यहाँ पे आइए. जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप किस डिपार्टमेंट से? जी, मेरा नाम मुतर्रिफ है, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ. असल में जी, हमें आप बताइएगा, चूँकि हम यहाँ पे जो कन्वर्सेशन कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे ये कन्वर्सेशन, हमने डिफरेंट पहलुओं पे बात की. चूँकि एक लड़का जो होता है उस पर कई सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है. इस बारे में बताइए कि आप किस तरीके से वो मैनेज करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन साथ में आपको एक एम्प्लॉयमेंट का भी एक प्रेशर रहता है. तो इस पर आपसे बात करनी चाहिए. जी, जैसा जेन्युइन क्वेश्चन जो हम फेस कर रहे हैं और इट्स एन जेन्युइन क्वेश्चन. देखिए, जो जब हम अडल्टहुड की तरफ आते हैं तो ये मेन प्रॉब्लम रहता है एक मेल का जो है मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि अभी जो एसएसबी के अभी नोट्स वगैरह आ रहे हैं तो उनके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं. मैं खुद भी अभी कुछ ऐसा नॉर्मली नहीं कर रहा हूँ, मगर एसएसबी का जो अभी आ रहा है तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ. जी, अच्छा, जो भी हमारे यहाँ पे कॉन्वर्जेशन हुई उसमें आप कोई पॉइंट ऐसा जो आप ऐड करना चाह रहे हो? या दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पहला जो इन्होंने बोला कि देयर इज एन स्ट्रेस किस वजह से कि टाइमिंग मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है और जो सिलेबस बहुत लॉन्ग है, यहाँ क्लास लॉन्ग होती है, उसकी वजह से हम खुद पढ़ नहीं पाते, टाइम नहीं मिल रहा है. तो ये सबसे बड़ा इशू है. तो बाकी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी का जो है यहाँ एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट आइडियाज़ का एक्सपोजर मिलता है और यहाँ वर्कशॉप्स हो रहे हैं जो हमने हो सकता है कि कभी कॉलेज लाइफ में उनको अटेंड ना किया हो, मगर यहाँ हम थोड़ा सीरियस हो गए अबाउट दैट इशूज़ के जा रहे हैं. परसों ही हमारा यहाँ था वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का था, तो वो हमारे फील्ड का नहीं था, बट स्किल एनहेंसमेंट के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने उसको जो है ऑर्गेनाइज किया था. दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ आवर डिपार्टमेंट. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. नाजरीन, कैंपस लाइफ का या यूनिवर्सिटी लाइफ को और एक्सप्लोर करने के लिए आइए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते हैं, कुछ और स्टूडेंट से भी बात करेंगे और साथ में इनकी कैंपस लाइफ को भी जानने की कोशिश करेंगे. नाज़रीन, अभी हमारे साथ ह्यूमैनिटीज़ के कुछ रिसर्च स्कॉलर्स मौजूद हैं जिनसे हम उनकी स्कॉलरी लाइफ के बारे में डिफरेंट पहलू पे बात करेंगे. सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे. जी, मेरा नाम तस्मिया है. अच्छा तस्मिया, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि जब हम स्कॉलरी लाइफ की बात करते हैं, एक पीएचडी स्कॉलर की बात करते हैं, अपने आप में एक बड़ी बात होती है और ये भी बड़ी बात होती है कि एक जो वसी चीज़ है रिसर्च अपने आप में, उसमें डिवेल्व करना, उसमें अपने आप को इंडल्ज करना, और उसके बाद जो सबसे अहम चैलेंज रहता है जो हमारी स्कॉलर्स हमसे शेयर करते हैं वो होता है टॉपिक सिलेक्शन. तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने आपका टॉपिक सिलेक्ट किया, क्योंकि एक बहुत जनरल एक चीज़ रहती है, फिर आप उसमें स्पेसिफिक होते होते जो एक शेप लेता है आपका टॉपिक, इसके बारे में आप हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. मुझे लगता है कि मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपकी रिसर्च की जर्नी में आपकी मेंटरशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको मेंटोर कौन कर रहा है. तो जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, इट वाज ओनली आई थिंक सब 2 years बैक,
आई वॉज इन अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी. मैंने कुछ बाहर स्टडी कर रखी थी. फिर जब यहाँ आई, फिर व्हेन आई जॉइन द डिपार्टमेंट, तो जब मुझे सुपरवाइज़र असाइन हुआ तब से लेकर अब तक मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दी है. शी नज्ड मी इन द राइट डायरेक्शन. और मुझे फिर लगा कि जो मुझे हर्डल्स मेरी जर्नी में आए वो इजी हो गए ओवरकम करना. टॉपिक से लेके फिर सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना, फिर पूरा कोर्स वर्क का जो भी सिलेबस था उसको कैसे टैकल करना है, ये सब मुझे एक गाइडेंस जो थी मेरी सुपरवाइज़र की, उसकी वजह से मेरे लिए ये जर्नी बहुत इजी हो गई. एंड थैंकफुली अगर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता जहाँ पे जो हमारा एनवायरनमेंट है डिपार्टमेंट का, द स्कॉलर्स दे काइंड ऑफ गिव यू अ वेरी नर्चरिंग स्पेस. सिर्फ फैकल्टी की तरफ से नहीं है कि आप नर्चर हो रहे हो, बट जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं वो भी दे काइंड ऑफ हेल्प यू मूव फॉरवर्ड एंड काइंड ऑफ ग्रो इन योर जर्नी. बहुत शुक्रिया आपका. इसी कॉन्वर्जेशन को आगे ले जाते हुए आप हमें अपना नाम बताइएगा और साथ में आपसे मेरा सेम सवाल रहेगा टॉपिक सिलेक्शन के बारे में. तो किस तरीके से एक स्कॉलर जो है वो अपना टॉपिक नेविगेट करता है, क्योंकि मेंटरशिप का एक अहम रोल तो रहता है मगर उसके अलावा एक पर्सनल जर्नी भी होती है. आप किस तरीके से उसको टैकल कर रहे हैं या आपके टॉपिक को आपने किस तरीके से सिलेक्ट किया? About topic selection, I agree with what Tasmiya said. आपको मेंटोरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बिकॉज यू आर न्यू टू इट. आप मास्टर्स करके आते हैं, आपको रिसर्च का उतना नॉलेज नहीं होती है. सो द बेसिक नो हाउ आपको कैसे नेविगेट करना है, रिसर्च कैसे की जाती है, आपकी मेथोडोलॉजी कैसी होती है, दैट यू गेट टू लर्न फ्रॉम योर मेंटोर्स, फ्रॉम योर सुपरवाइजर्स. टॉपिक की पर्सनल जर्नी तब स्टार्ट होती है व्हेन यू चूज a topic that personally resonates with you, जो आप जिसके साथ रिलेट कर सकते हो. और मुझे लगता है मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो एनी टॉपिक विच इज़ क्लोज टू योर हार्ट, यू आर एबल टू डू मच मोर जस्टिस विद इट. जब आप उसके साथ रिलेट करते हो, जब आपको उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो, आपने थोड़ी बहुत रीडिंग कर ली होती है ऑलरेडी, यू रीड अप मोर. आपको आपके सुपरवाइजर्स और गाइड करते हैं, आपके स्कॉलर्स, सीनियर स्कॉलर्स जो भी आपके बैचमेट्स होते हैं वो आपको फर्दर नाच करते हैं टुवर्ड्स, हाँ थोड़ा एक पर्टिकुलर आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो. देयर इज इसमें नॉवेल्टी है, यू कैन डू दैट, बट इट स्टार्ट्स विद अ passion, it starts with a personal interest and the environment is such कि आपको हर साइड से हेल्प मिलती है. आई अग्री, तस्मिया ने भी सेम चीज़ कही, मैं भी सेम चीज़ कह रही हूँ. यहाँ पे आपको हर तरह की सपोर्ट मिलती है. आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, आपको जर्नल्स का एक्सेस मिलता है. कभी कभी कोई चीज़ें पे वॉल में होती है, आपको वो चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करती है आपकी यूनिवर्सिटी. आपकी लाइब्रेरी में आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है. आपकी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, हमारी जो अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी है वहाँ पे आपके इतने रिसोर्सेज है, वहाँ पे स्कॉलर्स का अलग कॉर्नर है, आपको इंटरनेट की फैसिलिटी है, आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है. आपको जो डिपार्टमेंट में प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, या कभी कोई आते हैं बाहर से आते हैं, रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, यहाँ पे वर्कशॉप्स होते हैं, आपके टॉपिक के रिलेटेड होते हैं, कभी डिफरेंट भी होते हैं. तो यू गेट टू नो कि क्या हो रहा है और हमारे सब्जेक्ट्स में करंट टॉपिक्स क्या है, स्ट्रैंड्स क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी स्ट्रांग हो जाती है. दैट इज़ व्हाट आई थिंक. बहुत शुक्रिया महविश आपका. नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे. चूँकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे ये भी जजमेंट हमारे स्कॉलर्स को फेस करना पड़ता है कि एक फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पर मटीरियलिज्म ज़्यादा है, जॉब ओरिएंटेशन है. इस चीज़ को किस तरीके से हमारे स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स नेविगेट कर रहे हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा. जी, मेरा नाम तूबा है. अच्छा तूबा, इस चीज़ को आप किस तरीके से नेविगेट करते हैं? जिस तरीके से मैंने भी यहाँ पर जिस चीज़ का जिक्र किया कि यू ऑफन गेट जजमेंट कि आप जॉब ही कर लीजिए, रिसर्च करके आपको क्या मिलेगा, तो क्या चीज़ है जो आपको इसमें नेविगेट करने में मदद करती है? कुछ चीज़ें होती है अबाउट योर पैशन, अबाउट योर ड्रीम. सो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो पीएचडी में जाना मेरा एक पर्सनल
ड्रीम, मेरा एक ड्रीम था. तो नो डाउट ऐसे चैलेंजेस आए कि जहाँ पे लोगों ने बोला क्या करक PhD करित पत्ती छुई बिहुन, क्योंकि आज एज सच आज हमें सबको पता है कि हमारे यहाँ जॉब्स बहुत कम हैं, तो क्या करक वन PhD करे, फिर उसमें 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, क्या करोगी, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा. लेकिन इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट योर पैशन. I was passionate about going into research into this field, so I chose this field. हाँ, challenges आ जाते हैं, थोड़ा सा है, लेकिन जब आपको आपका ड्रीम होगा, आप पैशनेट होंगे अबाउट डूइंग दिस थिंग, तो आपकी वो कन्विक्शन जो है वो आपको इस रास्ते में आगे ले ही जाती है. एंड वो जब व्हेन यू आर मोटिवेटेड, जब आप खुद से मोटिवेटेड है कोई चीज़ करने के लिए, व्हेन यू आर डिटरमिन्ड टू डू समथिंग, तो ऑब्वियसली आप यू विल गो अ लॉन्ग वे इन दैट. एंड नो डाउट ये मुझे भी मालूम है कि हाँ जी, ये मैंने भी अपना माइंड ऑलरेडी सेट कर रखा है कि हाँ जी, ये एक जर्नी तो डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि PhD करना कोई आसान काम है नहीं. तो इसमें भी आपको बहुत हिंड्रेंसेस आएंगी, काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन वो सब चीज़ों को लेकर आप माइंड बना के चलते हैं. एंड आई थिंक दैट वे योर जर्नी बिकम्स ईजियर. बहुत बहुत शुक्रिया तूबा आपका, और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ के साथ रिलेट कर पा रही होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, मेरे जान पहचान में भी कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो चाहते थे कि हम रिसर्च की जर्नी में जाए, एकेडमिक लाइफ परस्यू करें, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि ऐसे ही जजमेंट्स उनको फेस करने पड़े. बट आपने जिस तरीके से इस चीज़ को नेविगेट किया है, बहुत खूब तरीके से आपने हमारी ऑडियंस तक भी वो मैसेज पहुँचाई कि आप इतने पैशनेट होने चाहिए, आपको बस ये पता होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो एक मकसद से कर रहे हैं, आप अपने लिए वो कर रहे हैं. इसी कॉन्वर्जेशन को और आगे ले जाते हुए कुछ और दोस्तों से भी जानना चाहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी ने उनके इस एकेडमिक लाइफ को, इस एकेडमिक जर्नी को किस तरीके से जो है उसमें हेल्प की. क्या आप में से हमसे कोई बात करना चाहेगा? तो आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पे इसी कॉन्वर्जेशन को आगे ले जाते हुए, चूँकि एक पर्सनल जर्नी होती है, पर्सनल डिसीजन होता है, उसमें आपकी मेंटरशिप की जिस तरीके से इन्होंने बात की, या आपका पैशन आपको काम आता है, इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे एक जो कैंपस लाइफ है आपकी यहाँ पर, वो भी आपको किस तरीके से हेल्प करती है अपने आप को जो है वो डेडिकेटेड रखने में, या किस तरीके का माहौल आपको मिलता है. और पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी, चूँकि हम यहाँ पे कैंपस लाइफ समझ रहे हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से, आप थोड़ा सा हमें ये पस मंज़र दीजिएगा कि किस तरीके से कश्मीर यूनिवर्सिटी आपकी एक्सपेक्टेशंस पे क्या खरी उतर रही है, या किस तरीके का माहौल यहाँ पे आपको मिल रहा है. मेरा नाम ज़ायरिश है और मैंने आई हैव ओनली रिसेंटली जॉइंड द डिपार्टमेंट एज अ रिसर्च स्कॉलर, सो आई हैव ओनली बिन हियर फॉर अ फ्यू मंथ्स, बट मैं लास्ट ईयर तक यहीं की मास्टर स्टूडेंट थी, तो मैंने यूनिवर्सिटी की कैंपस लाइफ बहुत ज़्यादा इन्जॉय की है. तो आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन. What do I say about the campus? I think the campus is ideal, it is beautiful, I think everyone will agree to it. The friends that you make, even in the masters or once you start your research journey, they stay with you for life, and they completely enrich your experience at the university. Lucky for me, I made a very beautiful friend when I was in my masters, and alhamdulillah we got to continue our research journey together. We got admitted in the same batch again. As a journey, research is a very difficult journey, and everyone will agree, but it is us and each other, our seniors and our batchmates, जो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं to navigate this journey and navigate this process. बहुत बहुत शुक्रिया ज़हरिश आपका हमसे बात करने के लिए. आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने एक खाका खींचा कि किस तरीके का एक चैलेंज रहता है अपने आप में रिसर्च करना और किस तरीके से आप नेविगेट करते हैं. नाजरीन, और भी कुछ पहलू हैं कैंपस लाइफ के, और भी कुछ यादें होती है जो इन स्टूडेंट्स की इस कैंपस के साथ जुड़ती है. उन यादों की तरफ और जाते हुए कुछ स्टूडेंट्स की तरफ हम रुख करेंगे, कुछ और स्टूडेंट्स से उनके डिफरेंट पहलुओं पे बात करने की कोशिश करेंगे. नाज़रीन, हमारे साथ बने रहे.
नाज़रीन, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम इनकी कैंपस लाइफ के बारे में जानेंगे, लेकिन चैलेंज ये है कि इनको एक वर्ड में अपनी कैंपस लाइफ को डिस्क्राइब करना है। तो आइए इस फन एक्टिविटी की शुरुआत करते हुए रुख करेंगे हमारी दोस्त की ओर। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप वन वर्ड में किस तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को डिस्क्राइब करेंगे? मैं कहूँगी मेमोरीज. I would say fun. Progressive. Cold and cold. Knowledge. I think career. नाज़रीन, इसी कॉन्वर्जेशन को कंक्लूड करते हुए यहाँ पे हमारे साथ कुछ और दोस्त हैं जो हमसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम नाज़िमा हसन है, मैं MA 3rd सेमेस्टर डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स से हूँ। अच्छा नाज़िमा, आप हमें बताइएगा, क्योंकि स्टूडेंट से भी बात की, उनके भी मिक्सड रिएक्शंस थे, कुछ चैलेंज के बारे में बात की, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की, तो आप इसको किस तरीके से देखती है? क्या चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज़ को मिला के एक जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको शेप करते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को आप किस तरीके से देखती है? और फिर फ्यूचर वाली एस्पिरेशंस को भी संभालना, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका है? मेरे हिसाब से तो बिकॉज वी कम टू द यूनिवर्सिटी, हमारा एक एक्सपीरियंस रहता है, गुड बैड। हम आते हैं, हम यहाँ पे फ्रेंड्स बनाते हैं, हम बहुत सारे टाइप के लोगों से मिलते हैं, और ये हमें ज़िंदगी में आगे इवन आफ्टर द यूनिवर्सिटी लाइफ ये हमें बहुत हेल्प करेगा टू नेविगेट लाइफ, क्योंकि आगे भी हमें ऐसे ही सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारनी है। एंड द यूनिवर्सिटी कैंपस इज़ लाइक अ मिनी वर्जन ऑफ दैट सोसाइटी। तो मेरे हिसाब से हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, द गुड एंड द बैड। और इन जनरल मुझे यूनिवर्सिटी की वाइब से, जो इधर का कैंपस की लाइफ है, जैसे हम अभी नसीम बाग में है, द रियली ब्यूटीफुल चिनार्स जो कि बहुत एंशेंट है हमारी, लाइक दे आर एज ओल्ड एज द टाइम इटसेल्फ। तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड आई थिंक दैट्स रियली ब्यूटीफुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इसी कॉन्वर्जेशन को और आगे ले जाते हुए यहाँ पर हमारे साथ कुछ और दोस्त भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए और आप किस डिपार्टमेंट? मेरा नाम हुरिया रियाज है और मैं लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट से हूँ, 3rd सेमेस्टर। नाज़रीन, जिस तरीके से हम एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, इन्हीं एक्सपीरियंसेस के बारे में इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो एक डर भी होता है, बट हम प्रेजेंट की बात करते हैं, आप फ्रेंड्स बनाते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, तो एक उम्मीद भी होती है। इस खौफ और उम्मीद के बीच एक नौजवान होता है, एक स्टूडेंट होता है, तो किस तरीके से आप बैलेंस करती हैं इन दो चीज़ों को, और किस तरीके से आप देखती हैं कि हमें होपफुल अपने फ्यूचर की तरफ रहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी जो लाइफ है वो एज अ पार्ट ऑफ माई जर्नी लेती हूँ। क्योंकि जर्नी इज़ ऑल अबाउट द गुड एंड द बैड। पहली बात तो ये कि इसमें उतार भी आ जाते हैं, चढ़ाव भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस सिर्फ मतलब अच्छे होंगे, दिन अच्छा जाएगा तो हमारे एक्सपीरियंसेस भी वैसे ही होंगे, बट हम अपने फेलियर्स हम अपने मिस्टेक से ही समझते हैं, संभलते हैं। सो इस सब के बीच में जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती है, दैट्स ट्रू। लेकिन हम उसके अलावा भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो नेचर है, हमें सिर्फ बैड एक्सपीरियंस ही नहीं बल्कि गुड एक्सपीरियंस भी देखने हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, चूँकि हमारे स्टूडेंट्स ने भी अपने मेंटर्स का जिक्र किया, अपने प्रोफेसर्स का जिक्र किया, तो हमने सोचा कि एक प्रोफेसर का भी हम पर्सपेक्टिव इसमें लें और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का सपोर्ट एक प्रोफेसर हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी में बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। हमारे साथ रिंकू पवार जी मौजूद है। आप बताइए, आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं यहाँ, और किस तरीके का चैलेंज आप देखते हैं, स्ट्रगल देखते हैं स्टूडेंट्स को, और हाउ यू मेक श्योर कि आप वहाँ हो उनके लिए, उनके इस एकेडमिक लाइफ की इस
उतार चढ़ाव की जर्नी? I'm Dr. Rinku Pawar from Center for Distance and Online Education, University of Kashmir. जो मुद्दा आपने आज उठाया है, which is regarding the challenges and the opportunities that the student of the University of Kashmir, specifically I would say students of the Valley, face in general during time of winters or summers. जैसे आप कहते हैं कि first pre-school बच्चे के लिए हम घर मानते हैं, उसके बाद फाउंडेशन स्कूल उनका वो होता है जब वो जूनियर स्कूल से हाई स्कूल में जाते हैं, सीनियर स्कूल से कॉलेज लाइफ एजुकेशन एक ब्रिज बनती है. लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे यहाँ पे जितने हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनको आप प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स या एसोसिएट प्रोफेसर्स के नाम से जानते हैं वो करते हैं. It's not only about mentoring them, it's actually about being their friend, philosopher and guide. एक फैकल्टी को यहाँ पर रहकर बच्चों के मतलब उनका दोस्त भी बनना है, उनके लिए राइट गाइडेंस भी देना है, उनको एक मार्गदर्शक बन के उनका दोस्त, उनका पेरेंट, हर किस्म का मल्टीपल फेसेटेड रोल जो है वो निभाना है. As you know, the National Education Policy of 2020 ने तो हाईलाइट कर दिया, और जैसे कि the children have to decide for their own degree. It's like actually that they can build up and make their own course. इस दौरान बच्चों के पास सबसे बड़ा चैलेंज है जो आज सोसाइटी में हम देखते हैं, too many options and too many choices. As a result, बच्चों का जो आज माइंडसेट है वो लाइब्रेरी से नहीं सीखते, वो किताबों से नहीं सीखते, वो सोशल नेटवर्किंग से सीखते हैं, वो सोशल मीडिया से सीखते हैं, जो कि दोनों तरफ कभी पॉजिटिव रोल या कभी नेगेटिव कॉनोटेशन दोनों किस्म का एक बच्चे के माइंड के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है. एज द ट्रू गाइड, एज अ ट्रू मेंटर, एज अ ट्रू फिलोसोफर हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जितनी भी फैकल्टी है वो बहुत सपोर्टिव है. फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स, वेदर इट्स अ साइंस, ह्यूमैनिटीज, रिसर्च, बच्चों के लिए एक कोर इंटरेस्ट इशू क्रिएट करने में सारी की सारी फैकल्टी मेंबर्स का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है. आई वुड से आवर मेंटोर, आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम निलोफर खान जी ने बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों में एक इंसेंटिव, एक किस्म का एक आप मान लीजिए इंस्टीट्यूशनलाइज करके पूरी एकेडमी को, पूरी यूनिवर्सिटी को एक फैमिली की तरह बांधा है. She has been consistent in managing and also in continuation with all the courses and also encouraging the faculty simultaneously along with the students. As far as my mentorship or the mentorship of my department and the faculty members of our department goes, I would suggest कि जितना आज peer pressure बच्चों को है, जितना आज academic pressure बच्चों को है, जितना आज emotional stress है, जितना आज mental stress है, उस सब के लिए बच्चों को आज जो सही दिशा और सही रास्ता है वो एक ट्रू फ्रेंड फिलोसोफर गाइड जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, आई वुड कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम एंड एक्चुअली से कूडोज टू देम दैट दे ऑल ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट एंड ट्राइंग टू मैच अप विद द स्ट्रेस लेवल साइमल्टेनियसली. नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारे इन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस जानने के बाद आपकी भी यूनिवर्सिटी की यादें ताज़ा हुई होगी. नाज़रीन, उम्मीद है आपका आज का शुमारा आपको पसंद आया हो. नए शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नया मौजू लेके. तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.